चलिए बेटा, उसके लिए उनने कुछ लेक्चर एक डाला है, वो देखिएगा कल का लेक्चर। देखा आपने? इन्होंने नए बच्चे। Yesterday we discussed about assets, that asset is a property of the business which is owned by the business, which belongs to the business, which is a resource of the business and can be converted into cash. Ushna simple. Today we'll be looking at types of assets, because to move forward it's mandatory that we should know what are the different types of assets, how we can classify the assets, because classification is very important as far as your syllabus is concerned. Wahan aa sakta hai which among them is a non-current asset, which is a fixed asset. Now first we classified assets on the basis of tangibility. On the basis of, we said we have tangible assets, very good, and we have intangible assets. Tangible asset gay tim asset which are physical in nature, which have a physical existence, which can be touched with hands, which we can move from one place to another, which we can see with our hands, we can feel with our senses. Those are all tangible assets. Yele Sirat Lakshmi Nathun business wuch, yem nafran su business shuru kor Lakshmi Nath hos temis now. Temin sarvi khot God has temal building. Building is a tangible asset because it belongs to him. Agar ye building asha rent petai ratmus, telios ni imsund asset, because it didn't belong to the business. He cannot convert it into cash. Ownership is very must. Sorry kahmaini look hundi nimo kinit. Nahaz walas meshuna asset I'm muju because it's a resource of the business. Ina guys no gobra sorry resource yota asun. Yes, you should have ownership of that. कल पढ़ा रहे थे हम एक जगह पे घर पे, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हमसे, बोला सर आप एसेट एसेट बोलते हो, एक कंपनी है, वाई इज नॉट ह्यूमन रिसोर्स देयर एसेट? क्या फिर वो झूठ में बोलते हैं द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर इट्स एसेट्स? मैंने बोला भाई झूठ नहीं बोलते हैं, अगर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में देखेंगे वो एसेट नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट वैल्यू ह्यूमंस. ना सोई प्रॉब्लम तेमुन शी हैड अ डिस्कशन विद मी. शी सेड व्हाई even they are the resource, they give you so much benefits, you give them cash, they give you benefits, without them it is impossible. I said fine, okay, accepted, but fine, now we have to show them in the accounting. Tell me what value you will put on which human. He kits kai mano yemsas neran 7,000 crore value, yemsas neran 19,000 crore value. Kit kai mano, in the eyes of God we have been created, we are one. Maybe our capabilities differ, he may be great in one thing. So valuation of assets is very important. You cannot consider such thing as an asset which cannot be valued at all. Go asset should be valued at all. Because accounting accounting paran, it is about the financial transactions. And accounting is about recording, people say. अच्छा चुको बाया रिकॉर्ड करुन, हिसाब किताब करुन. हिसाब किताब है को ना तिमनी चीजन करित which can be expressed in numbers, which can be expressed in monetary terms. It is brought paro. Kahma vain to himas asset taki as which find the odd one out. Human resources asset usually ishwana. It is to boost their morale. We say human resource assets. आजकल एक नई accounting भी अब आई गई है. We call that human resource accounting. आपको उसके साथ कुछ करना नहीं है. Now, tell you the building I'm soon asset, क्या ownership चुवारिया must.
मगर अम हेच मल यह बिल्डिंग अम लक्ष्मीनाथन यह बने अम सन्स एसेट दैट इज बिल्डिंग तम पत ओन मशीनरी अन नज गोबरा वेरी गुड ओन कर मशीनरी these are all tangible they have a physical existence जनाब अली फर्नीचर एंड फिक्सचर फिलहाल सैनिस tangible asset दुनिया अगर वो मगर सैनिस बिजनेस मज यम त्रे furniture and fixture. Now let's today try to know what intangible assets are. Intangible assets are those assets which do not have a physical existence. Physically, you cannot show them to someone, look at my asset, I have this asset. No, 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 you cannot show them physically. Like I will give you an example. जो ये tangible assets होते हैं बेटा, a business acquires them, a business buys them, a business, you cannot create tangible assets, but intangible assets, they can be either purchased or they can be created. Example I will give you. अभी सारा दुनिया एक बीमारी से लड़ रहा है, दैट इज कोविड. नाउ ये समझ लीजिएगा बेटे सब, ये बात किसी कंपनी ने एंटीडोट निकाला, कंपनी ने नहीं, किसी लैब ने एंटीडोट निकाला. Wherein a lab is a place wherein scientists having the required knowledge, they are working and they found the solution. They even did the human trials, testing phase. Years ago, it is done and dusted. Now, yes, this particular drug is the antidote. Now that lab cannot produce the drug on its own. They only have the formula. Now they will enter into a contract with some leading pharmaceutical company. ये एक कॉन्ट्रैक्ट में घुसेंगे with a pharmaceutical company. They will tell them, we will give you the formula and we will not give this formula to anyone else. You buy this, and the company, which is a pharmaceutical company, they will purchase the rights. We call them patents. That no other company can make this drug. They will pay them millions and billions of dollars. You should not acquired, go you should patent, you should acquire kurmu. They have acquired this asset. It's an intangible asset. Paga heklim kus hayithi patent achaka shakal. It's an agreement. It's a signed agreement that yes, we are going to give you this patent, trademarks, copyrights. These are all things which you acquire over the period of time. And then how you value them? You value them on the price you have purchased those intangible assets. You have acquired them. So this pharmaceutical company, in their balance sheet, they will show an intangible asset. Kushu intangible asset patent. That price aspect, yat pratimo ye buy core. Because this is a patent with them. Ithai kanchu asan. Goodwill, because I named few of the intangible assets here. We national Lakshminathan's businesses akhti. Me karim ithai kai nav yeten. Godnu kor me nav zan. Suppose you have goodwill. Samjha ba ke sari. Ay sabash. You have patents. Very good. You have trademarks. You have copyrights. है ना बेटा? किसी किताब पे आपका कॉपीराइट होता है छपाने का, राइटर के साथ आप घुसे होते हैं इन दैट कॉपीराइट. क्लियर है बेटा? दीज आर ऑल इंटैंजिबल एसेट्स. गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स. नाउ लेट्स लुक एट देम वन बाय वन. Some of them can be acquired, some of them can be created. Some of them can be acquired, some of them can be
created, while as tangible assets, they can be only acquired. They can be only, you purchase them with the capital, you purchase them whenever you are in need of an asset, you purchase them in the business. Chunas Gobra. Now, let's try to look at goodwill, which is even your syllabus mein hai. Goodwill is the name and fame of the business. It is the reputation of the business. And it is created over the series of years by providing quality products and services. Which is, whenever we think of a particular mobile brand, automatically when a high-class brand, an elite brand comes to our mind, we think of Apple or Samsung. When we say why Apple, because over the years, with no compromise on quality, Apple has been able to create a goodwill. Now this gentleman will tell me, sir, how is this goodwill valued? Buildingers is showed value kadna. Buildingers has 1 lakh mile. Goodwill ki bhi wo aapko padna nahi hai. We have procedures of valuing goodwill. We do that by looking at the profits of the previous series of years. Magar ye goodwill, it's like a magnet. Like a magnet attracts the products which are attracted to magnet, this goodwill attracts the customers. And this goodwill is created over the series of years by a company. It's a reputation. Suppose whenever we think of schools, the quality education, automatically the schools like Burnhall, like Bisco, like Convent, like Mallinson, they come to our mind because over the years they have been involved in providing quality services to the students, and the outgoing students of these schools have performed brilliant in their life. That means over the years they have created a niche, they have created a reputation. That reputation is goodwill. Now you know goodwill has a types as well. Goodwill पे हमने ज़्यादा बात की, वो तो थोड़ा सा ये जब भी intangible asset की बात होती है, goodwill दिमाग में आ जाता है. People will tell you goodwill, but remember this, goodwill is created by providing quality services and quality products to the customers. Then it acts as a magnet. Suppose whenever you want to buy a jeans, automatically Levi's comes to your mind. If you have to buy a branded one, बहुत सारी चीजों में ऐसा ही है. Now, goodwill की किस्में होती है. ये थोड़ा आपके साथ बोलेंगे, कभी वहां आ सकता है ये. पेटेंट की कोई किस्म नहीं है, ट्रेडमार्क की कोई किस्म नहीं है. Suppose this gentleman, he found a solution to some problem. This gentleman, he found a solution to some problem. Now, problem was a very big problem. Now he has found a solution to that problem. He has invented something. Not discovered, he has invented something in Banoak prototype. That yes, this is going to solve the problem. Say electric kangdi ka concept isne diya. Yeah, any concept he gave which is going to solve a particular problem. But this gentleman himself cannot manufacture the prototype he has given. He cannot manufacture the actual product on a rampant scale. Ye ekne pan banayit, emissions of machinery. He will, yes, he will enter, ya I'm banav car which runs on solar energy. Now he is going to patent it and sell it to someone, and some automobile giant. The automobile company which purchases this, they will show patent as an intangible asset because that patent will be only available with him, with that company, because it was his. He knew it, that I have of no use to this, but yes, it is my baby. Why not sell this patent to someone? जिसने वो acquire किया, उस company के लिए क्या बना? वो intangible assets. Like you all must have seen an Apple iPhone.
In our phones, the ones who are non-Apple users, we have an operating system Android. Chuna? Yes, please, beta, come. Ashwa Android phone. Apple has an operating system which only Apple iPhones have. Windows, Apple has iOS, which only Apple has. They have a patent on that. Some companies can even patent the designs. Yemi design Now, when I talk about goodwill, incisary intangible assets, copyrights, trademarks, intellectual property rights, ये सारे इसी में आते हैं. तो गुडविल की 4 किस्में होती है. अब बात उठी है गुडविल की, आपको बोलेंगे कभी आ सकता है क्वेश्चन. गुडविल हैज 4 टाइप्स. You have a dog goodwill. You have a cat goodwill. You have a rabbit goodwill. And you have a rat goodwill. गुडविल 4 किस्मों का हो सकता है. Either it is dog goodwill, or it is cat goodwill, or it is rabbit goodwill, or it is rat goodwill. When I say dog goodwill, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, आपको पता होनी चाहिए. Dog is an animal, you know that? कभी किसी ने आप में से कुत्ता पाला है घर पे? Never. कुत्ते की एक खासियत है, वफादार होता है. कुत्ता बहुत वफादार होता है. So suppose dog goodwill is you are faithful to a person, not to the institution. Suppose I will give you a small example. You have a saloon outside your home, wherein right from your childhood आप उसी सलून में गए हैं as a boy for your haircut, for trimming your beard, because you find that saloon perfect. But there is a person in that saloon with the name Aslam, आप उसी से बाल कटवाते हैं. अब आपने सुना ये असलम जो है इसने अपनी दुकान खोली है 4 किलोमीटर दूर. आप उसी दिन से वो शॉप छोड़ देंगे, आप असलम के पीछे पीछे उसी शॉप में जाएंगे. दैट इज कॉल्ड डॉग गुडविल. दैट इज कॉल्ड wherein you are faithful to the person, not to the institution. या सपोज बह वन तुह जुमा दो छु तुम वाज बोजन ग समझाने खतर बह वन नत तुस फलान मौलवी सबन वाज बोजान षुक वुचान अथ मशीर मन सह मौलवी आज आमतुई सह गोमुत बे कुन जाय षुक तूर वातान. यह गो डॉग गुडविल. Because you are faithful to the person, not faithful to the institution. क्योंकि कुत्ते का खासियत है वो मालिक का वफादार होता है. अगर मालिक घर छोड़ के किसी और घर में चला जाएगा वो उसके पीछे पीछे वही आएगा. When I say cat goodwill, every business has created a goodwill. But some business and create kormu type of goodwill. Suppose you are attracted to quintessence. आप क्विंटेसेंस के नाम पे, इनकी क्वालिटी पे, इनकी इंटेग्रिटी के लिए यहां आए हैं. फिर यहां अकाउंट्स कोई भी पढ़ाए, डजंट मैटर. मगर जो आपने ये चूज किया है क्विंटेसेंस, आपने उनकी रेपुटेशन के लिए चूज किया है कि बिकॉज दे हैव द रेपुटेशन ऑफ नॉट चीटिंग द पीपल. दे आर देयर इन दिस फील्ड एंड दे हैव प्रूवन इट टाइम एंड अगेन by their integrity, by their honesty, by their dedication, by their efforts. So that is a cat goodwill, wherein you are faithful to the institution. You are faithful to the business. Who क्या जी बिल्ली का खसलत ही यही है, बिल्ली घर का वफादार होता है. सो बेर गरस वफादार आसान च त्राउन बेर कुन त सुई वापस तथ गरस मजहरस तत त्रैतन तमिस खेन पत कह. You are faithful to the
इंस्टीट्यूशन, टू द बिजनेस, आप क्विंटेसेंस के लिए यहां आते हैं, because you are faithful to the quintessence, not faithful to any particular person who, whether I teach here, whether anyone else teaches here. You have faithful because you are attracted to the brand image quintessence has created over the series of years. That is cat goodwill. Rabbit goodwill, जो rabbit animal होता है बड़ा डरपोक जानवर होता है. Now he has to go for buying or he has to go for availing any service. बड़ा डरपोक होता है, ये देखता है घर से बाहर ही कौन नजदीक में है, ज्यादा दूर वूर क्यों जाना है. मतलब he doesn't lay much emphasis on the quality and all. He just, मतलब suppose you have to go for a shopping, you know I go there because they give the quality products or services. Rabbit goodwill ये देखता है vicinity में कौन ही है, जल्दी काम निपटना चाहिए. He doesn't lay more emphasis on that. Rat तावन ज़द जानवर आसा, अमिस ये फायदे मिले यह तौर वाता. He is not concerned with the quality, quantity. ये discount he will go there, ये free he will go there. This is rat goodwill. He is neither faithful to the person, nor to the institution, nor to his vicinity. ये जहां जाएगा वहां नुकसान करेगा. You got it clearly? Now, thoda about goodwill. Now you know the first classification we do, that is on the basis of tangibility. We have tangible assets and we have intangible assets. And intangible assets can be created or they can be acquired, purchased, like you have patents, copyrights, trademarks. Clear? Clear? Very good. Wonderful. Now, बोरमा गए गुबरा सु इम्पोर्टेंट क्या यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम यह रोजन इन लेजॉन बराबर क्वेश्चन मा कह वनुक तान. Rabbit and rat. Cat goodwill is faithful to the institution. Cat is faithful to the institution, to the business. He is no faithful to anyone. Use vicinity must mili gastotan, but in the vicinity. Because he is fearful. He believes people are going to cheat there. He is not going to easily trust people. You got it? Now, we will be classifying assets on the basis of the time period they are going to remain within the company, within the firm. Time khatra wat bey यह आई ना समझ मे गोड कथ ये बह वात वन वापस पन्ने स्टोरी पे तम पत हेक बह ब्या क्लासिफिकेशन कर वन बूझो कूरी योकुन असल पे. जब कल हम वापस स्टोरी पे आएंगे, क्योंकि स्टोरी से कनेक्ट रहता है, अब आप आराम से बोल पाएंगे टेंजिबल कौन है, फिर टेंजिबल का लिस्ट बढ़ता जाएगा और इनटेंजिबल में अगर कोई आया या कोई क्रिएट हुआ ओवर द टाइम, अगर इसको गुडविल आया क्रिएट करना, या इसने कोई एक्वायर की कोई टेक्नोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर गोल्ड दिस वे, हॉलमार्क्स होते हैं ना, जैसे टनिशिक का अपना है वैसा कुछ अगर इसने कर पाया तो इंटेंजिबल एसेट भी आएगा इसके पास. नाउ स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी स्टोरी को. कल जो हमारे लक्ष्मीनाथ भाई साहब थे, इसके पास प्रॉब्लम क्या न Is it focused? Thank you. Thao Gobrana sir. Please try to understand now what today I am going to share with you. It's very important as far as the future understanding is going to be. Godni kya class atne chuti kushish karnish ke. Yah kares build understanding. Yemai classes godni karnes build understanding. And you people are going well. Smooth you are going. It's a good sign कि समझ छु यवा मेन छु गोडती अकाउंट्स खतर मस्ट गोडनी चिम के जोर दो अम पछे जनाब अली काम गसान लक्ष्मीनाथ से 2 करोड़ रुपये कैपिटल 2 करोड़ रुपये अम मजी अनिम गोडे बिल्डिंग कसा अनिन ना बिल्डिंग अनिन शायद 1 करोड़स कोई मसला नहीं है, अमाउंट को इधर उधर भी हो जाए, कौन सा रियल लाइफ बिजनेस है.
बिजनेस इसने बिल्डिंग लाया, इसने 1 करोड़ रुपए का। फिर इसने फर्नीचर और फिक्सचर लाया था, एसीज, पेंटिंग्स, फर्नीचर, कॉस्टली पेंटिंग्स, शैंडिलियर्स, जार इमन वनान कशीर पे, अंग्रेजी में शैंडिलियर बोलते हैं। कभी आपको इंग्लिश का पार्ट होगा कोई, शैंडिलियर जार जो आसान ना, हैंगिंग झूमर, ब्रिलियंट। फर्नीचर एंड फिक्सचर इसने लाए, उसमें ये सारे आते हैं। कितने के लाए थे बेटे? 20 lakhs। अमाउंट गन और परवाह किया। 20 lakhs अम पे क्या जन मशीनरी कसा जन 20 lakhs। बे मा क्या ओनमुत अत 60 लाख रुपये बचे यह गो बिचोर परेशान। दोपन है वन गो सोर, मगर वन पे अमिस बे दोपन है मे मसल, दोपन मे वर्कर्स अन। अमिस वोन क्या परवाह कह ये ऑलरेडी कम करा, दोपन मे कत कर्म वर्कर वातन फलन दो फ्रॉम राजस्थान, because he needs workers who will convert the gold into beautiful designs, who will run these machines. Now he is satisfied. Then he says, okay, local recruitment el me karin ka manager, sales girl, that I will recruit locally from Hyderabad, because they don't need to be skilled, they don't need to be hum chme skilled nafar zorat yim gold biscuits convert karan into very good, into jewelry. Yes. Now one chuna imis mall zorat, I mean assets, one chuna imis raw material zorat, stock zorat. He is concerned, he is deeply dejected. बोलता है मेरे पास खाली 40 लाख रुपया बचे हैं, मुझे 2 करोड़ रुपए का सोना लाना है, मुझे कौन उधार पे देगा? जो इसका फ्रेंड होता है, he says him, why are you worrying? Don't worry. I have a friend in Dubai who is a supplier, I will give you guarantee. He will give you stock on credit for 3 months. For 3 months. He is happy and he tells them, give him only 10 lakh rupees. उसको अभी 10 लाख रुपए तुम दे दो, मगर बाकी जो 1 करोड़ 90 लाख है वो उसको, या 20 लाख उसको अभी दे दो, 1 करोड़ 80 लाख उसको 3 महीने बाद दे दो, 60 लाख 60 लाख 60 लाख 6 रेतन मज वाल पन कर्ज गडनिकन 3 रेतन मदिस कहिन, क्या तमिस मे कॉन्ट्रैक्ट बनित, एसोसिएशन बनित, कर ये गो खुश। He says, okay, fine. Now he gave an order for stock worth 2 crores worth. Dubi pet what mal emis transportation het ropian 2 crore what emis mal. Now he purchased stock. He purchased because without stock his assets have no value. Building cha value ya intan am khot draji machine thi stock lagaya 4 चांद, क्या ये पगा स्टॉक प्रोसेसिंग गछि वो सोना बन जाएगा, वही सोना कल को मार्केट में बेच दिया जाएगा। ये इंतन am खत बज बज बिल्डिंग तथा वैल्यू अछुन अमि वरै मोल किहिन। क्लियर छस? Now he purchased stock. He purchased stock worth 2 crore rupees. मगर उसमें 20 लाख कैश दिया, 1 करोड़ 80 लाख वेरी गुड क्रेडिट पे दिया। किस पे लिया? क्रेडिट पे। भाई अब एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखोगे, स्टॉक इज ऑल्सो एन एसेट। Stock is also an asset. Now you will say, sir, how? Because it is a property, it is owned by the business. Was misipet on magar issue business. It is a resource. And it can be converted into
कैश, ये करन बे कैशस मज कन्वर्ट गो, और एक एसेट हमारे पास आया, कौन सा? स्टॉक। स्टोरी ब्रोट पकना चीज हेचान। स्टॉक कितने का आया बेटा? 2 करोड़ का। मगर वन पृछ मे ये जेंटलमैन, दपे मे सर अमसे 2 करोड़ रुपये यह कपर ओन 3 करोड़ 40 लक्षन गोबरा, अमिस खसना कर्जदारी तमिस खसना 1 करोड़ 60 लक्षा खच अमिस कर्जदारी तथ वन क्रेडिटर्स, क्या वन क्रेडिटर्स, कर्जदार, यमन बिजनेस पोस दार। आज हेचो वन कॉन्सेप्ट डेटर कुस गो तो क्रेडिटर कुस गो। हे क्लियर छज? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ। यूता आवा समझ? स्टॉक ये क्या एसेट, स्टॉक वनतस, इन्वेंट्री वनतस, रॉ मटेरियल वनतस, एक ही बात है। आप स्टॉक इसको बोलो, आप इन्वेंट्री के नाम से इसको जानो, या आप रॉ मटेरियल बोलो, एक ही बात है। या फिनिश्ड गुड फिर होता है लास्ट का, जो बेचने के लिए रेडी होता है। जब आता है माल उसको स्टॉक बोलते हैं, या इन्वेंट्री बोलते हैं, या रॉ मटेरियल बोलते हैं। अलबत्ता युस वन ट्रेडर आसे तमिस खतर छु फिनिश्ड गुड वन फिनिश्ड गुड। ये निबर कन ग्रोसरी स्टोर बिस्किट लाता है एज फिनिश्ड प्रोडक्ट, बेचता भी है एज फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्लियर है? अब हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे डेटर और क्रेडिटर का। बहुत बड़े बड़े जो कॉमर्स के पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनसे भी पूछिएगा, कभी डेटर और क्रेडिटर की डिफरेंस नहीं पता होगी, आप पूछिएगा, है कंफ्यूज हो जाएंगे, डेटर क्या गो क्रेडिटर क्या गो। आज आप सीखेंगे ता कयामत इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे डेटर और क्रेडिटर होता क्या है, और ये भी बोलेंगे कौन एसेट है और कौन लायबिलिटी है। कौन लायबिलिटी गई कर्ज, लायबिलिटी गो कर्ज, विच बिजनेस ओव्स टू द आउटसाइडर्स। कर्जा जो बिजनेस पे है, जैसे आप लोगों ने फी भरा, हम लायबल है टू टीच यू फॉर 2 months or whatever is the time period, I don't know that is liability. Sir, what is the difference between creditor and liability? Creditor is a liability is a bigger thing, creditor is a liability. There is no difference between creditor and a liability. Creditor is a type of a liability. जैसे building is a type of an asset, creditor is a type of a liability. हमें लायबिलिटी की भी किस्में है। ब्रिलियंट क्वेश्चन। जब हम पढ़ेंगे क्रेडिटर इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ अ लायबिलिटी, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्रेडिटर एंड क्रेडिटर। बहस लायबिलिटी, मगर लायबिलिटी बिगर सेट, क्रेडिटर तमिक टाइप। वेरी गुड। पारा सो एवरी लायबिलिटी इज नॉट क्रेडिटर, एवरी क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। पारा सो एवरी ह्यूमन इज नॉट अ डॉक्टर, एवरी डॉक्टर इज अ ह्यूमन। जैसे आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। यम गई ह्यूमंस, छज यम गई डॉक्टर्स। एवरी डॉक्टर इज अ ह्यूमन। कहा वन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड अ डॉक्टर? एवरी डॉक्टर इज अ ह्यूमन, बट एवरी ह्यूमन इज नॉट अ डॉक्टर। एवरी क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, बट एवरी लायबिलिटी इज नॉट अ क्रेडिटर। लायबिलिटी ती पानी किस्म। क्लियर? ब्रिलियंट। वन चॉइस कॉन्सेप्ट डेटर तो क्रेडिटर। यह ना वह कत समझुन क्या पगह एसेट्स पगह कर वर्ड यूज डेटर, गुस्क मे तम साथ सर आपने तो बोला ही नहीं डेटर क्या होता है। जब ना मैं एसेट्स की बात करेंगे, एसेटा डेटर ते यह स्टोरी समझुन डेटर कुछ गो, तम साथ वन बह डेफिनेशन, अत मज़ कह कंस कॉमर्स पोर्मुत तमिस वन डेफिनेशन रट थोमुत याद। वन टू होम बिजनेस ओव्स इज अ डेटर। बिचोर पे गसान परेशान, क्यों टू होम बिजनेस ओव्स सह क्या गो, सो प्रैक्टिकली डेटर क्या तुम वन पाई स्टॉक 2 करोड़ रुपये वारा बुझ गोबरा। सर तुम कत बसान? कुलगाम। वेरी गुड, ब्रिलियंट।
तथा दुकानदारा कह युस लुकन पचान छु तो वजमिस पे चीज कनान वेरी गुड ब्रिलियंट क्या दुकानस तम नाव थोमुत क्या चलिए गुलाम एंड सन्स यह बिजनेसमैन ही इज अ ट्रेडर ही इज अ या समझ ही इज अ रिटेलर अम्स ना तो ज्यादा समझ पे घर नबर कन दुकान यमिस रेत पत दो रेत सारी पोस दिवान यह क्या करान यह माल हेवान सप्लायरन कमन हेवान because the business from whom it purchases they are called suppliers they are called business जिनसे माल लेता है उनको बोलते हैं सप्लायर उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं वेरी गुड ब्रिलियंट क्या गोबर वना सप्लायर्स तिम नफर तिम कंपनी यमन निश ये रिटेलर ये सोल प्रोपराइटर चीजें लाता है go he buys it from suppliers he has different supplier दाल हेवान अकिस नफरस तुमुल हेवान अकिस नफरस रोटी एक से लेता है दूध एक से लेता है फिर यही उस विलेज उस टाउन उस सिटी के लोगों को बेचता है जिनको बेचता है उनको क्या बोलते हैं कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स वाइन वर्थ एन ब्याख पॉइंट कुन विज हेक्यो इकोनॉमिक्स मज मदद दिथ यह व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर छा डिफरेंस वेरी गुड यमन न पाई छ तिमन वन ब मोय छ एमोन पन्निस बच्चस खतर बेबी फूड मदर छ कस्टमर बेबी छु कंज्यूमर मैं बाहर गया अपने लिए मैंने गोल्ड फ्लैग का पैकेट लाया मैं खुद ही कस्टमर हूं खुद ही कंज्यूमर भी हूं कस्टमर इज द वन हु बाइज इट कंज्यूमर इज द वन हु यूजेस इट कुन विज हेकि कस्टमर यसित कंज्यूमर थे इन थे लक्ष्य कथ याद तय चीज पत तथिया बोर्ड कॉन्सेप्ट अब पिछले साल का पेपर देखिए आप देखिए पहले 10 के क्वेश्चंस में कितने अब आप कर पाओगे क्योंकि आपको कुछ चीजें तो समझ आई होंगी एसेट कौन है टेंजिबल इंटेंजिबल कौन है उधर आया था टेंजिबल इंटेंजिबल पे एक क्वेश्चन now he is selling it to the customers मगर इस गुलाम मोहम्मद नफर यह चालाक बिचोर यह रिस्क ज्यादा निवान बाया यमन यह माल हेवान आमिर तिमन हेवान यह कैशस पे क्या हेवान गो ही बाइज स्टॉक ऑन कैश ही डजंट बाय स्टॉक ऑन क्रेडिट ही बाइज स्टॉक ऑन and he sells the stock on cash go emis wazum kus rozan go na as emis creditory na as emis debtory ithezi kat yaad mein a business who buys stock on cash from its suppliers and sells the stock on cash to its customers he will neither have a creditor nor a debtor ये बात लिखिए डेटर ये स्पेलिंग है और गो क्रेडिटर ये वन्ना बाजी कर कॉन्सेप्ट क्लियर क्रेडिटर ब्या गो डेटर डेटर्स गई वारिया डेटर DEBTOR डेटर बहुत सारे बोलते हैं डेबिटर गलत वर्ड है इट इज डेटर बी साइलेंट है TORDETOR डेटर creditor debtor clear chas now let's say a business there's a point yaad which buys on cash from its suppliers and then sells on cash to customers and then sells on cash to customers will neither have creditor nor debtor पता जो गरना एमस पाने ऑब्जेक्टिव्स कड़ा इशु बे एक बात आपको बोलेंगे बेटा
अब आप आए हैं यहां पढ़ने, है ना, ये 2-3 महीने जितना है, अब जब एग्जाम होगा, इन 2-3 महीने इस एसएसबी एग्जाम के बदले और कुछ सोचो ही मत आप लोग। कुछ जाए अगर करान छू पार्ट टाइम जॉब क्या, लीव दैट, ओनली थिंक अबाउट दिस, गिव इट अ फुल हार्टेड एफर्ट। ये सन गाइडेंस गर पन डेडिकेशन, यह आमतु कि तुह नेर, गिव 100% टू इट, 110% टू इट। यहां पढ़ते हो, घर में उसको रिकैप और एमसीक्यूज डाउनलोड, सॉल्व देम। जो नहीं आएंगे वो हमारे साथ आगे डिस्कस होते जाएंगे, कोई दिन रखेंगे उसके साथ। मगर सोचुन सिर्फ ये कि यह कड़, यह कुछ मसल पत मसल खुदा पत यम सात तुम यी सिर्फ सोचो कि यह कर क्वालिफाई, पान आम पाने, यह पत घर रिकैप, यह ग क्वालिफाई, स्ट्रेटजी पत पन बनावी कित क्या कर बाकी। और ये बाकी ये बनाई है इनने यूट्यूब चैनल, बकवास बोल रहे होते हैं उसमें, ऐसे करो वैसे करो। खुद अपना रास्ता ढूंढना है, यहां गाइडेंस लेनी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, घर जाके पढ़ना है। अथ मा जीकेएस मा कह लिमिट, तत योत पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज। गूगल में दे दो एमसीक्यूज ऑन दिस, जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट है ओजोन, एमसीक्यूज ऑन ओजोन, 10-15 पेजों पे एमसीक्यूज, 7 एमसीक्यूज तगन ओजोनस पे कर गो ओजोन क्लियर, याद कर ऑब्जेक्टिव याद था, दैट्स द बेस्ट वे टू स्टडी। एमसीक्यूज ऑन ओजोन, एमसीक्यूज ऑन दिस, एमसीक्यूज ऑन दिस, एमसीक्यूज ऑन दिस, कर पत तिम सॉल्व, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। बाकी तो आप पढ़ते ही है, यहाँ वो भी गाइडेंस मिल रही है। बाकी आज द्राम SS वेस क्या ट्रिपल एस विपल एस बकवास कर पे तम कॉन्फिडेंस सान वन जन पे बिहित पे यो अत गो यह पे गो यह तुह पर्न योतन पर इंसान तम वर अंद ये गाइडेंस गर पर्न अंद तेल कहें वनो बह बुथ कन। देयर आर पीपल हु आर शोइंग डेडिकेशन, अच्छे डेडिकेशन हावन, बस दैट्स इंपॉर्टेंट। चलने वनले तो लाइक्स कितने इनको आएंगे, वो कितने आएंगे। जो एक पर्सनल टच में इंसान सीखता है ना, वो यूट्यूब चैनल वैनल से नहीं सीखता है। एक एक बात याद रहती है इसमें। तेल टीचिंग कर बंद यूनिवर्सिटी कॉलेजन मज, दैट पर्सनल टच हैज टू बी देयर ऑफ अ टीचर। नाउ गुलाम अहमदन कर वह स्ट्रेटजी चेंज, दोपन है मे ना यार बिजनेस पकान अम मे अमिस दिस हो सप्लायरन ऑन क्रेडिट, योर कन कस्टमरन ऑन क्रेडिट। नाउ ही अप्लाइड दिस स्ट्रेटजी, वन यह सप्लायरन पोस दिवान रेत 2 रेत 3 रेत, यह वार वार पोस दिवान सप्लायरन। गो अमिस तिम सप्लायर यमन अम वजमिस पे पोस होत, यह दायरना तिमन पोस, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स, दे आर कॉल्ड, जिनके हम कर्जदार होते हैं उनको क्रेडिटर्स कहते हैं। जिनका बिजनेस कर्जदार होता है उनको क्रेडिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गो सप्लायर बनन, क्या बनन सप्लायर? क्रेडिटर। सप्लायर बन क्रेडिटर, सो सप्लायर यमिस वजमिस पे माल हेतमुत, यमिस कैशस पे माल हेतमुत, सो मा बन क्रेडिटर। गो क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, क्रेडिटर इज अ, बिकॉज वी ओव टू हिम, बिकॉज वी कर्ज तम सुंद। गो अजक पे रूद वुमर तुह याद, सप्लायर क्रेडिटर बना, सु क्रेडिट सु सप्लायर यमिस वजमिस पे होत, एंड क्रेडिटर वो इंसान होता है जिसको हम पैसा ओ कर रहे होते हैं, जिससे हमने रॉ मटेरियल लिया था, उसी को सप्लायर। जिसने हमें कोई चीज, ब्याक लायबिलिटी है कि बैंक लोन, तमिस वनो न क्रेडिटर, तमिस वनो सोदी बैंक लोन से। आई समझ? गो लायबिलिटी कस्म सह वना बह यम सात बह बैंक लोनस पे। फिलहाल गुलाम अहमद यमिस हेवा माल सप्लायर, यह क्या बनो अमिस? क्रेडिटर। अगर वारिया आसनस गई क्रेडिटर्स। गो creditor is a liability, creditor is a very good. Why liability? Because we have to repay them back, we have to repay them. Very good, brilliant. Now customers जो क्रेडिट पे माल लेते हैं, ये बोलेगा ये मेरे क्या है? डेटर्स। बड़ा बुझ। वो कस्टमर
जो उधार लेते हैं बिजनेस से वो बिजनेस के लिए क्या होते हैं? डेटर्स। क्या होते हैं? डेटर वो लोग होते हैं यम बिजनेसस पोंसदारन। क्रेडिटर गो यमन बिजनेस पोंसदार, यम बिजनेसस पोंसदारन तिम गए डेटर्स, तिम गए डेट। विच वन यह सीधी कथ विस, यह कॉमन सेंस। यह गो यम सुन क्रेडिटर गो ना, यम गुलाम महमदुन क्रेडिटर गई यह गो यम सुन डेटर, यह गो यम गई यम सुन डेटर, यह गो युहुंद क्रेडिटर। क्लियर छस? सपोज यम तोह मज फीस दित सह सोन क्रेडिटर, क्रेडिटर सोन तम सुन। यम वन फीस दिन सह सोन डेटर, तुहद किन अपोजिट। यम तोह मज फीस दित तम सुन डेटर, यमिस तोह मज फी दिन तम सुन क्रेडिटर। क्लियर छस? क्लियर छस? है बे मज समझाउन यह बे समझाउन बे समझा बिजनेसस युस पोंस दार तमिस वनान डेटर, बिजनेसस युस पोंस दार तमिस वनान डेटर, बिजनेस यमिस पोंस दार तमिस वनान क्रेडिटर। गो गुलाम मोहम्मद का क्रेडिटर ये है, इसका डेटर गुलाम मोहम्मद है। गुलाम मोहम्मद का डेटर कस्टमर है, कस्टमर का क्रेडिटर गुलाम मोहम्मद। क्लियर है? इतक अगर ए इज क्रेडिटर ऑफ बी, वारा बुझ, ए इज देन बी इज डेटर ऑफ ए, बी इज थो याद छुना क्या ए बी दार पोंस कमिस दार एस, बी दार पोंस एस दार ना, एस दार पोंस कुस बी। आवा समझ? आवा समझ? आवा समझ किन बे वन? मैं और बोल सकता हूं, और बोलूं? वंस मोर, वेरी गुड। अगर यहां पे ये एक बिजनेसमैन है जिससे इसने उधार पर लिया, वो इसका क्रेडिटर बन जाता है, वो इसका शाबाश। और जिसको ये उधार पर बेचता है माल, वो इसका क्या बनता है? डेटर। अगर अब इन दोनों की रिलेशनशिप देखेंगे, गुलाम मोहम्मद के हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं? गुलाम मोहम्मद की। गुलाम मोहम्मद की क्रेडिटर्स कौन है? ये सप्लायर्स। अब अगर हम सप्लायर की अकाउंटिंग करेंगे, सप्लायर का क्रेडिटर कौन है? हमें पता नहीं है। सप्लायर का डेटर कौन है? गुलाम मोहम्मद। वेरी गुड, ब्रिलियंट। क्लियर है? और डेटर इज एन एसेट, डेटर इज एन, now you will say how sir, because they can be converted into cash, they can be converted into, they have promised that yes we will repay back money to the business after 3 months, after 2 months, after 4 months. Clear है? Clear है? debtor क्या छो इसकी पेट? asset, debtor क्या छो इसकी पेट? creditor क्या छा? liability। वहीं अगर डेटर ने पैसे देने से इनकार कर दिया, मुकर गया, खाए पैसे, तमिस वनान बैड डेट। क्या चिस वनान? क्या चिस वनान? क्या चिस वनान? बद बापार। क्या चिस वनान? बद बापार, बैड डेट। बैड डेट इज दैट डेटर हु डिडंट पे द मनी बैक टू द बिजनेस। वेरी गुड। एक द प्रुस में बचन एक पोंस, दोपन सर अगर अस खेमो क्रेडिटर्स पोंस तथ क्या वनो? दोपन सो गई जालसाजी, सह मा हावुई अकाउंट्स पे, तथ पे जेल गए हेकवा सो हयित? अस खे कंस पोंस सो हावो, वनो दुनियास है भाई अस गो लॉस, पनुन अब हाया कह? अस खे कंस पोंस, अस हावा सो? वी विल नेवर शो दैट इन द, दैट इज जालसाजी। वी विल डोंट शो इट, वी विल से वी पेड। है ना? हम मत दिखाएंगे हमने इनको पैसा खाया। तो जब एक डेटर हमारे पैसे मुकरता है खाने से, पहले वो डाउटफुल बन जाता है, पहले वो डाउटफुल ये काल पगह करा, पत ये पूर पे देवोल कड़ान सह दिवान कहें, तमिस वनान बैड डेट। क्या वनान? क्या वनान? बैड डेट। सो बैड डेट इज अ लॉस, बैड डेट इज अ, बैड डेट इज अ लॉस टू द बिजनेस। छुना गोबरा गोबर छुना लॉस? वन मा पोर अस लॉसेस, मैं वो इथे कनी कि बैड डेट इज अ लॉस। लास्ट की बात एक बोलेंगे, अगर यमिस गुलाम मोहम्मदस कस्टमर वो दो कस्टमरों खेमिस पोस, यह क्या वन गई मे बैड डेट,
तिमवी बूजमुत मुश्ताक वीरी सुन वाज मशीद मज वन कि यम पोस कंस खे सह गि जनतस जहन इन गो एहसास यम आई पोस हेत गुलाम मोहम्मदस वापस तमिस वन बैड डेट रिकवर्ड क्या वन bad debt recovered. Bad debt recovered is that bad debt which was earlier called as bad debt. Now he repaired the money back. Clear? Thank you.